Good morning, class 6. Again, welcome to biology classroom once again. Actually, my B.Ed exam is going on. That's why I'm not able to come to school to take your live class. That's why I will send some videos for this week. Please open the page 93, Adaptation in Mesophytes. So look at your book. These plants have in terrestrial habitat. So mesophyte कहाँ पे मिलता है? Terrestrial habitat, मिट्टी के ऊपर मिलता है. Which has a good amount of moisture in the soil and high humidity in the atmosphere. So obviously terrestrial habitat का कंडीशन क्या होना चाहिए? मिट्टी के अंदर sufficient water होना चाहिए और उसी के साथ एटमोस्फियर में high humidity होना चाहिए. The soil in which they grow is neither very wet nor very dry. So जिस soil में मेसोफाइट्स जन्म लेगा उस मिट्टी को neither very wet nor very dry, मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए. Temperature is moderate. This habitat is ideal for the growth of crops and tropical forest. Examples of mesophytes are rose, sunflower, gulmohar, mustard, tomato, potato, clove, rosewood, mango, people and so on. So पढ़ना क्या है? बेसिकली मेसोफाइट्स कहाँ पे जन्म लेता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में. वहाँ का मेन कंडीशन क्या है? सॉइल जिसके अंदर सफिशिएंट वाटर सप्लाई होना चाहिए और एटमॉस्फेयर जिसके अंदर हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए. उसी के साथ जिस सॉइल पे मेसोफाइट्स जन्म ले रहा है वो मिट्टी ज़्यादातर वेट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए और उसी के साथ टेम्परेचर जो है ये मॉडरेट होना चाहिए, मतलब बीचों का बीच. सपोज 30 to 40, उससे ज़्यादा होगा तो नॉर्मली पेड़ का ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा. तो उसी के साथ दो एग्जाम्पल पढ़ लेना. नेक्स्ट, some adaptation in mesophytes are as follows. Leaves are broad but thin. Normally terrestrial habitat में मिलने वाला जो पेड़ है उसका पत्ता कैसा होता है? ब्रॉड, आकार में थोड़ा ब्रॉड होता है और थीन, पतला. एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स इज कवर्ड विद अ थीन क्यूटिकल. क्यूटिकल से कवर्ड है उन लोगों का एपिडर्मिस, मतलब पत्ता जो लीव्स का ऊपरी भाग है. The surface is basically covered with thin cuticle. Stomata are present in the large numbers. Obviously, lower surface of the leaves. Mechanical tissues and conducting tissues are well developed. Roots and stems are well developed. So, mesophytes ka roots and stems both are well developed. Next, adaptation in xerophytes. Zero मतलब related to desert. So desert plants, these are also known as xerophyte. Desert में मिलने वाला पेड़ पौधा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? xerophytes. Xerophytes grow in places where there is a shortage of water and high temperature. So xerophyte का जन्म लेने का मेन कंडीशन क्या होगा? जिस मिट्टी में xerophyte जन्म लेता है वहाँ पे नॉर्मली वाटर सप्लाई बहुत कम होना चाहिए, मतलब लैक ऑफ वाटर सप्लाई. उसी के साथ टेम्परेचर विल बी हाई, सबसे ज़्यादा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एकासिया, कैक्टस, ओपांटिया एंड सो ऑन. द बॉडी ऑफ दीज प्लांट्स इज अडॉप्टेड टू कंजर्व वाटर एंड सो एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर अवेलेबल इन द सॉइल. सो उन लोगों का बॉडी ऐसे मॉडिफाइड है क्योंकि वाटर कंजर्व करके रख सकता है, उसी के साथ मिट्टी का बहुत गहराई में जाके ये मैक्सिमम वाटर कलेक्ट भी कर सकता है. प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट शो सम फॉलोइंग एडाप्टेशन. क्या क्या कैरेक्टर दिखाई देता है? लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. फर्स्ट लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन फॉर व्हाट? To reduce the water loss. मतलब as transpiration process, plants reduce their excessive water from their body. So when their leaves modified into spine, it actually help or prevent the loss of water from the surface of leaves.
स्टोमाटा आर लेस इन नंबर, स्टोमाटा नंबर में बहुत कम है, एंड sunken in the surface, and the surfaces of leaves become shiny and glazed to reflect light and heat. लाइट और हीट की वजह से पेड़ का जो ऊपरी भाग है बहुत ग्लेजी है, बहुत ग्लॉसी है. Both leaves and stems have a thick waxy coating to prevent loss of water in the hot weather. So this line is very important. देखो सिर्फ leaves नहीं है, both leaves and stem, both part is covered waxy coating, क्योंकि waxy coating जो है ये excessive water loss होने में prevent करता है. Stems become green to take up the function of leaves. Most plants such as the cacti have stem becomes fleshy to store water. They have a well-developed root system and that penetrates deep inside and soil in search of water. So normally in case of xerophyte, their roots are highly developed. That's why they can able to conserve more water inside it, and it can able to consume or absorb maximum number of water from deep of the soil. Next, adaptation in plants that grow in mountains. Plants that grow in the mountains, they are pine and fir, show the following adaptation. The trees growing on mountain are cone shaped. बेसिकली माउंटेन में मिलने वाला पेड़ देखने में कैसा लगता है, पिरामिड जैसा लगेगा. ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, ट्रायंगल शेप का है, इसलिए क्या बोला जाता है, कोन शेप्ड प्लांट्स विथ स्लोपिंग ब्रांचेस. ब्रांचेस भी ऐसा है लगेगा कोई शेप, प्रॉपर शेप में उन लोगों को काट के रखा है. ठीक है. This shape of this tree help rainwater and snow to slide off easily without causing any damage to leaves. इसी कारण प्रॉपर शेप के द्वारा ज्यादा रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो, कोई भी पेड़ के ऊपर जम के नहीं रह सकता है, वो डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर गिर जाता है. नेक्स्ट, दे हैव स्मॉल निडल लाइक लीव्स दैट आल्सो हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली. उन लोगों का नॉर्मली माउंटेन रीजन में मिलने वाला पेड़ जो है, उन लोगों का लीव्स कैसा है, निडल शेप्ड. इस वजह से स्नो बहुत जल्दी स्लाइड ऑफ हो जाता है. Stems store water are covered with a thick waxy layer to prevent loss of water. Stem जो है obviously waxy coated and it also help to reduce the water loss. Trees in the mountains are tall so that they can expose themselves to sunlight for photosynthesis. So mountain region में मिलने वाला पेड़ जो है बहुत लंबा होता है. ठीक है, क्योंकि सनलाइट में एक्सपोज करके उन लोगों को रहना पड़ता है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपर सनलाइट और टेम्परेचर उन लोगों को नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, एडाप्टेशन इन एरियल प्लांट्स. ऑर्किड्स आर क्लासिफाइड एज एपीफाइट्स. एपी मीन्स on top and phyte means plant. These plants grow in the upper level of the forest canopy in order to receive better height. फर्स्ट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना. एपी मीन्स टॉप एंड फाइट मीन्स प्लांट. सबसे ऊपर में मिलने वाला प्लांट, ऊपर मतलब उन लोगों का हाइट नॉर्मली बहुत ज्यादा होता है. दिस प्लांट ग्रो इन द अपर लेवल ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी एंड ऑर्डर टू रिसीव बेटर लाइट. क्योंकि एक लेवल का होने पे क्या होता है, उन लोगों का फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई सन रे नहीं मिलता है, इसलिए वो नॉर्मल लेवल को भेद करके बहुत लंबाई में पहुंच जाता है. दे ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मॉइस्चर इन द एयर एंड फ्रॉम डैम्पनेस एंड डेब्रिस ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट प्लांट. ठीक है. Some of the roots of orchids wrap themselves around their host. ऑर्किड का रूट जो है बेसिकली जो होस्ट प्लांट के ऊपर वो जन्म लेता है उसके अंदर घुसा देता है. while others dangle freely in search of nourishment. कुछ ऑर्किड्स में नॉर्मली रूट फ्रीली भी मतलब दिखाई देता है. दे हैव थिक waxy और लेदरी लीव्स. ऑर्किड का नॉर्मली लीव्स कैसा होता है, थिक waxy और लेदरी लीव्स. Some are slender and curl up on themselves, reducing the surface area and thus restricting water loss. Surface area बहुत कम होने के कारण water loss भी बहुत restricted है. Others look almost like succulents with swollen leaves and
pseudobulbs that store water for periods of hardship. मतलब जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उन लोगों को ना मिलता हो, इसीलिए उन लोग क्या होता है, सकुलेंट्स है, नेचर में सकुलेंट्स है विथ सोलिंग लीव्स. लीव्स कैसा रहता है, फुला हुआ रहता है, और स्यूडोबाल्ब्स दिखाई देता है. स्यूडो मतलब फॉल्स, नोडिव्स जैसा बाल्ब दिखाई देगा जिसके अंदर वो खाना और न्यूट्रिएंट्स, वाटर सप्लाई कुछ भी हो उसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रख सकता है. सो स्टूडेंट, hope all of you understood. So for today, up to this portion.